एक्सप्लेन करશે. ઓકે, હું તમને ગુજરાતીમાં થોડું ઘણું ખાલી બ્રીફ આપી દઉં. સો વી આર હિયર, અમે અહીં આવ્યા છે સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટનું કોન્સેપ્ટ તમને સમજાવવા માટે, અને શેના માટે તમારા માટે વધારે બેનિફિટ થશે. સી બેસિકલી આઈ એમ શ્યોર તમને લોકોને ખ્યાલ હશે that market is not at its best. ઓકે, પણ શેના માટે નથી at its best? Not because કે આપણને જરૂર નથી ફ્લેટની, મને જરૂર છે. ઓકે, પણ બહુ મોંઘું છે. ઓકે, મોંઘું પડે છે, એટલે હું રેન્ટ ભરું છું 50,000નું લોખંડવાલામાં, પણ હું ફ્લેટ નથી લઈ શકતી. કેટલા બધા ફ્લેટ છે માર્કેટ, રાઈટ? પણ મને જોવે છે પણ નથી લઈ શકતી બીકોઝ ઇટ્સ એક્સપેન્સિવ. ડેવલપર્સ વચમાં હોય ને એટલે વધારે એક્સપેન્સિવ થઈ જાય છે. સો વી આર હિયર કે તમને સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટનું કોન્સેપ્ટ સમજાવવા માટે, જ્યાં આગળથી ફ્લેટ્સ તમારા રિઝનેબલ પ્રાઇસ પર હશે, that someone like me કે someone like you આપણે લઈ શકીએ. એટલે જે મોંઘા ફ્લેટ ખાલી પડ્યા છે, આપણા ફ્લેટ વેચાઈ જશે. સો બેસિકલી આમાં ફાયદો બધાનો છે, તમારો પણ છે અને જે બાયર્સ છે એ લોકોનો પણ છે. તો તમારી ઇન્વેન્ટરી ડેડ ઇન્વેન્ટરી નહીં રહે. જે બિલ્ડર્સના ડેડ ઇન્વેન્ટરી છે અત્યારના, ઇટ્સ મેઇનલી બીકોઝ ઓફ પ્રાઇસના લીધે, નોટ કે બાયર્સ નથી. બાયર્સ બહુ છે માર્કેટમાં, બટ અફોર્ડેબલ નથી. એટલે આપણે પોતે જ કરીએ ને તો આપણે ઘણી લેવલ ઉપર કોસ્ટ આપણે લો કરી શકીએ. એટલે મિડલ ક્લાસ શું કહો? ઓકે, તો જે બેસિક કોન્સેપ્ટ હતો ને મેં ગુજરાતીમાં સમજાવી દીધું તમને લોકો. હા, પછી સર હિન્દીમાં પણ ભાષા બોલશે. સો બેસિકલી what I just said was that the market is dull and there's a lot of inventory with the builders, not because there are not buyers, but because it's very expensive. Buyers are there. I am a potential buyer. I'm paying 50,000 rent in Lokhandwala for the last 13 years. But I cannot buy an apartment because I cannot afford to buy it, and all my money is literally, excuse my language, going down the toilet in rent. So we have come up with a concept which is self-development, where the quality remains the same, if not better, but the cost of the flat will be at a more reasonable price, where someone like me or you or any middle class, upper middle class families can afford to buy. So whereas the builders' apartments are yet empty and just lying there as dead inventory, ours will be sold in a much faster pace, because there are plenty of buyers who want to buy. They'd rather pay mortgage than pay rent. However, they are not getting that chance to because it's costly. Because when the developer is involved, the cost I would approximate at least by 30% would be higher than if it's me building my own apartment. So by self-development, we are doing it ourselves at a minimum cost, same quality, if not better quality, because it's our decision what we want to do, what wood we want to use, what flooring we want to do, what tiles we want to do, how we want our building to look. We're not bounded by the design of the builder or the cost factor that the builder puts in addition to what the actual costs are. Are we understanding? Somewhat? So now sir will take over. We'll give you all the technical information plus any other questions you have, and he speaks all the languages, not like me. Okay? Thank you. नमस्कार. नवरात्रीच्या सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. जय माता दी. मला असं वाटतं ते मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही असतील. थोडं इंग्रजी निघेल, थोडं हिंदी निघेल. मूळचा नागपूरचा आहे त्यामुळे हिंदीचा टच जरा जास्त है. बीच में कुछ बातें होती है तो बीच में निकल जाता है, हिंदी आ जाता है. अभी तो हमारे मुख्यमंत्री भी नागपुर वाले हैं
तो थोड़ा सा जरा हमारा हिंदी जरा ज़्यादा आ जाता है इसमें. हिंदीमध्ये चालेल ना. सो हॅपी नवरात्री, जय माता दी, एंड माता रानी विल ब्रिंग ऑल दैट हैप्पी न्यूज फॉर यू. सो नवरात्रि की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. सो माय नेम इज राजेश अकुलवार. आई एम वन ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम साई संपदा कंसल्टंट्स. साई संपदा, वी डिजाइन, वी बिल्ड एंड वी गिव द सॉल्यूशन फॉर रीडेवलपमेंट थिंग्स. अभी अगर पिछले कुछ सालों का अगर जायजा लिया होगा तो सन 2001 के दरमियान 2001 से एक रीडेवलपमेंट का ट्रेंड आया हुआ है. उसके पहले कुछ नामचीन बिल्डर्स थे, वो बिल्डिंगें बनाते थे, जैसे अजमीरा है, लोखंडवाला है, और कोई बिल्डर्स थे, वो लोग बिल्डिंग बनाते, देवर नामचीन और देवर बिगर्स वन. उसके बाद में 2001-2002 में से आपने सुना होगा कि कोई सोसाइटी के रिडेवलपमेंट्स होते हैं, जिसमें जैसे माड़ा की सोसाइटीज थी और कई प्राइवेट की सोसाइटीज, उनको एडिशनल पोटेंशियल मिला. सो मेरे इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैं बंबई आया 1 अगस्त 1996 एंड आई वाज ऑफिसर टू माड़ा फॉर 15 इयर्स. मैं खुद माड़ा में इंजीनियर था, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर. माय लास्ट पोस्ट वाज डेप्यूटी इंजीनियर एट माड़ा पेंड्रा ऑफिस. एंड बीइंग अ सिविल इंजीनियर, मुझे बहुत सी चीजें वहां पर माड़ा में सीखने मिली कि माड़ा क्या होता है, लैंड क्या होती है. माड़ा की करीब करीब, आज आपने अगर बंबई में देखा होगा तो माड़ा की करीब करीब 56 लेआउट्स है, 56 लेआउट्स, अराउंड 104 कॉलोनीज. यहाँ पर भी मुलुंड में आपने देखा होगा, अपनी माड़ा की कॉलोनी तो रही है. तो एक बेसिक जो होता है कि एक हाउसिंग का नॉर्म्स, हाउसिंग के लैंड, हाउसिंग के डेवलपमेंट्स, उसके एक बेसिक कंपेंडियम जो होते हैं. तो बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, माड़ा इज बीइंग बिगेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका एक पार्ट रह चुका हूँ. तो बहुत सी चीजें वहां पर मुझे सीखने मिली. पहले से तो इंजीनियर था जहां मैंने बिल्डिंग बनाई, लेकिन माड़ा में आने के बाद में माड़ा में मुझे कन्वेंस क्या होता है, लैंड टाइटल क्या होता है, हाउ द डेवलपमेंट इज डन, व्हाट इज एफएसआई, एडिशनल एफएसआई कैसे यूज किया जाएगा, आज क्या कंस्ट्रक्शन है, आज के बाद में नया मिलने वाला कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा, उसका एस्टिमेट कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आज की एमिनिटीज क्या दी जाती है, व्हाट शैल बी द सेलिंग कॉस्ट. क्योंकि अगर एक बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट या कुछ अगर करना है तो बेसिकली रीडेवलपमेंट का बेसिक थीम ही यहाँ से शुरुआत थी कि एक जूनी बिल्डिंग है, एक पुरानी बिल्डिंग है, जो आज अगर आपने देखा होगा तो बहुत से लोग करीब 1962, 64, 70s, 74, 75 ऐसे पिछले 30-40 सालों से रह रहे. बंबई का वेदर तो आप सभी लोग बंबई के वेदर से वाकिफ हो कि बंबई का वेदर जो है थोड़ा मॉइस्टी वेदर है. बंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी है तो उसका असर कहीं ना कहीं जाके एक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, स्टील यूज होता है, सीमेंट कॉन्क्रीट यूज होता है. सो स्टील का रस्टिंग बड़ा फास्ट हो जाता है, जिसपे आजकल के डेट में लोग उसके ऊपर कुछ पॉलीमर्स और कोटिंग यूज करके उसको डिमिनाइज करने को देख रहे हैं. डिमिनाइज बोला तो मिनिमाइज करने वाले हैं, लेकिन मिनिमाइज इतना नहीं हो पाता और मॉइस्टी वेदर की वजह से स्टील करोड़ होता है. और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पिछले 30-40 सालों के पहले की बिल्डिंगें जो है, उस वक्त G+3 या G+4 की बिल्डिंग बनती थी, ऑलमोस्ट एक मैक्सिमम बता रहा हूँ. और G+4 होती थी जिसमें स्टेयरकेस होती थी सिर्फ, जहाँ लिफ्ट नहीं होती थी. जो बेसिक एमिनिटीज जो है, एक लिफ्ट होना चाहिए, एक फ्लैट बोला तो मोज़ेक टाइल्स होती थी, जैसे ग्रे सीमेंट की टाइल्स हो रही है. अभी आपने 2001 और 2 के बाद में जो बिल्डिंग चालू हुई तो वहां पर 7 माला से लेके 24 माला 25 माला तक बिल्डिंग से एवरेज में. उसके बाद में टॉवर्स भी हुए, लेकिन उसके 25 माले के ऊपर के टॉवर्स थोड़े से एक्सक्लूसिव हुए, कोई ज्यादा टॉवर्स ऐसे आपको नहीं दिखे. बट एवरेज 7 माला के बाद में 14 माला से लेके 23 माला तक रीडेवलपमेंट होते वक्त रिडेवलपमेंट कैसे हुआ कि रीडेवलपमेंट एक जूनी बिल्डिंग है, जूनी बिल्डिंग है, अगर 4 माला से 7 माला तक बिल्डिंग है, 20 टेनेंट्स है, तो उनका उस वक्त पहले जमाने में क्या हुआ था कि पहले जमाने में लोग कम थे, जगह ज्यादा थी, स्पेस ज्यादा थी. तो स्पेस के हिसाब से एक लेआउट अगर डिवाइड होता है, 1 लाख स्क्वायर फुट की एक अगर कॉलोनी है किसी, आई विल गिव अ एग्जांपल ऑफ माड़ा कॉलोनी, कि माड़ा का एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के बीच में कहीं नाला है, रास्ता है, ग्राउंड है, ये सब छोड़ने के बाद में बिल्डेबल प्लॉट्स अवेलेबल होते थे. उसमें एक प्लॉट का लेआउट, कभी के आर्किटेक्ट की प्लानिंग उस वक्त प्लॉट मार्क करते थे. समझो उसमें अगर 1 लाख स्क्वायर फुट जगह में 10-10 हजार फुट के प्लॉट अगर मार्क हुए तो 10,000 फुट के प्लॉट के ऊपर में 10,000 फुट का कंस्ट्रक्शन करना है. दैट इज अ एफएसआई वन फॉर दैट पर्टिकुलर प्लॉट. पर आज के डेट में क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल्स कमिंग ओवर इन मुंबई का क्राउड आपने देखा होगा कि मुंबई को एक व्यापार नगरी बोला जाता है और हर एक आदमी कहीं ना कहीं अपना नसीब आजमाने के लिए मुंबई आता है. तो नसीब आजमाने के लिए मुंबई आता है तो सबसे बेसिक नीड तो उसकी घर है. अन्न वस्त्र निवारा में से जो है, निवारा जो है हमारा, तो सबसे बेसिक चीज है घर है. तो उसको अगर घर चाहिए तो नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ने चाहिए. तो लोग कहीं से विरार से आते हैं, कहाँ से करजत और कसारा और कहाँ से आते हैं. तो जब मुंबई के अंदर में घर जब बनाना है तो गवर्नमेंट हैज टेकन अप कॉग्निजेंस ऑफ दिस थिंग एंड गवर्नमेंट ने उसमें बोला कि आप इसमें एफएसआई बढ़ा सकते हैं. सो एफएसआई बढ़ा सकते हैं तो एफएसआई कहीं और से तो आना नहीं है.
एक होता है एफएसआई होता है, दूसरा एक टीडीआर होता है, जो प्राइवेट प्लॉट्स के ऊपर टीडीआर, पर माड़ा के लैंड के ऊपर एफएसआई होता है। सो एफएसआई का मतलब है कि आज आपका अगर एक पोटेंशियल है, प्लॉट एरिया 10,000 स्क्वायर फुट है, उसके ऊपर 10,000 स्क्वायर फुट के इन टोटलिटी फ्लैट अगर हुए हैं तो दैट इज अ कंजम्पशन ऑफ 1 एफएसआई। आपको इसके आगे जाके लोग बोलते हैं कि 2.5 मिला है, 3 एफएसआई मिला है, 3.5 मिला है। हाउ इट हैज कम? एफएसआई आगे आया बोला तो कैसे आया, कहां से आया? उस लेआउट में जैसे रोड्स, नाला और प्लेग्राउंड थे, इनका पोटेंशियल उस वक्त उस प्लॉट के ऊपर लोड नहीं किया हुआ। 1 लाख स्क्वायर फीट में से उस वक्त प्लॉट का अगर एरिया गिना जाए तो 40,000 फुट का प्लॉट्स का कंजम्पशन हुआ था। इट मींस अराउंड 40% ऑफ द टोटल प्लॉट्स। अगर 40% को 2.5 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख स्क्वायर फीट, यानी पूरे लेआउट का एक एफएसआई वहां से एफएसआई जनरेट हुआ। ये तो हुआ माड़ा लैंड्स के लिए। अभी हो गई प्राइवेट लैंड। तो प्राइवेट लैंड में काफी लैंड थी जो फ्री होल्ड लैंड थी, जो कुछ लीज होल्ड लैंड थी। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर जाता है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक एफएसआई कंज्यूम है तो एक के ऊपर एक टीडीआर। टीडीआर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। किसी और जगह पे कहीं पे अगर टाउन में या कहीं पे अगर बिल्डिंग बन रही है तो वहां सारा पोटेंशियल उस प्लॉट के ऊपर यूज नहीं हो सकता है। अब पोटेंशियल प्लॉट के ऊपर कभी यूज नहीं हो सकता है कि एक बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग के आजू बाजू में कम से कम फायर की गाड़ी घूमने के लिए, हमारे व्हीकल घूमने के लिए, हमारी पार्किंग रखने के बाद में जो जगह बचती है उसमें हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग की हाइट जो है, हाइट और ओपन स्पेस, इसका एक रेशियो होता है। फॉर दैट डेवलपमेंट कंट्रोल रूल इज देयर। इन 1991 कॉर्पोरेशन का डीसीआर आया। डीसीआर में कुछ नॉर्म्स दिए गए कि अपने एक रूम का साइज ये होना चाहिए, रूम की हाइट ये होना चाहिए, हैबिटेबल साइजेस ऑफ दैट रूम। अकॉर्डिंगली ओपन स्पेस करके तो वहां कंज्यूम नहीं हुआ, वहां से जो जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड टीडीआर। नाउ आई विल कम टू दैट आवर प्रोजेक्ट। अभी आई एम फ्रॉम साई संपदा। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Who we are? So we are a project management consultant. So project management consultant यानी क्या? ये एक प्रोजेक्ट अगर करना है तो प्रोजेक्ट में पहले जैसा डेवलपर होता था। सो डेवलपर एंड सोसाइटी अपना प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन के लिए एक डेवलपर आता था सोसाइटी के पास में, सोसाइटी से एग्रीमेंट करता था, सोसाइटी का और उनका एक एग्रीमेंट होके डेवलपर उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करता था गवर्नमेंट के साथ में, सो दैट इट शुड बिकम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लेने के बाद में वो सोसाइटी के साथ में एक टर्म्स एंड कंडीशन पे होता था कि आपको हम इतना फ्लैट, अगर आपके अभी इतने फ्लैट्स हैं तो हम इतना फ्लैट बना के देंगे, उसमें जो सेलेबल के लिए जो पोटेंशियल रहेगा उसको बेच के हम इसमें की कॉस्ट रिकवर करेंगे। एंड मीनवाइल इन दिस टोटल बिजनेस ही विल अर्न सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दैट वाज द प्रीवियस रीडेवलपमेंट थीम कि हम लोग रीडेवलप। इसके बीच में क्या हुआ कि शुरुआती तौर पर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये थीम नहीं था, पर गवर्नमेंट ने अंडर 79A में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दिया कि एक बिल्डर और सोसाइटी टू कीप दिस, एक इसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बिल्डर ने अगर कल को अगर उसका प्रोजेक्ट डिले होता है, कल को उस प्रोजेक्ट में कुछ टेक्निकलिटी फॉल्ट आ जाता है या लीगलिटी फॉल्ट आता है तो वो चीज जाती है कोर्ट पे जाती है। कोर्ट पे जाते हैं तो उस वक्त सोसाइटी को उस चीजों को फेस करना पड़ता है कि शुरुआती तौर पे एग्रीमेंट बनते हैं। तभी शुरुआती तौर पे जब हुआ सोसाइटीज के एग्रीमेंट बन गए, बिल्डर लोगों ने, कुछ लोगों ने बीइंग ए प्रोफेशनल सारी चीजें उनके फेवर में रख के सारे एग्रीमेंट बना के लिए, सो दैट इन फ्यूचर अगर कुछ डिले या कुछ भी होता है तो सोसाइटी विल हैव टू रश टू कोर्ट ओनली। तो अगर कोर्ट में जाके हम अगर करते हैं तो उसको टाइम लग सकता है उसमें। तो इसलिए पीएमसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हु विल बी अ मेडिएटर इन बिटवीन सोसाइटी एंड अ डेवलपर। So project management consultant will take care of all the things. Being a technical person, being a legal person, being a marketing person, he will take care of everything. He is just a mediator to do the activity on behalf of society. He will ask the developer what are the things you are giving, what is the agreement, what are the norms of that agreement. आप कैसे agreement कर रहे हो, क्या होगा एग्रीमेंट में, दोनों चीजें नॉर्मल रखी कि नहीं है। अगर आप डीले होते तो आपको पेनल्टी रखनी चाहिए, अगर आप जल्दी आते हैं तो जल्दी के इसमें कौन से होने चाहिए, अप्रूवल्स कैसे होने चाहिए। इसलिए पीएमसी का इंट्रोडक्शन। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब ये पीएमसी का इंट्रोडक्शन होने के बाद में पीएमसी ने काफी चीजें आगे ली कि सोसाइटी के साथ में सोसाइटी का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। अब सोसाइटी एक डेवलपमेंट अगर होना है, बिल्डर तो अगर देखा तो बिल्डर अपना प्रॉफिट पकड़ के उसमें एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, वो उसके फेवर में बनाता है। तो एक पीएमसी करके मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके मैं फिजिबिलिटी क्या बनाता हूँ कि आपकी अगर ये बिल्डिंग है, आपके बिल्डिंग के बीच में आपके इतने फ्लैट्स हैं, आपका इतना कंजम्पशन हुआ है, राइट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, राइट फ्रॉम द लैंड टाइटल आई विल स्टार्ट कि लैंड टाइटल क्या है, उस चीज का कन्वेंस हुआ है कि नहीं है, कन्वेंस के बाद में उसका लैंड टाइटल का लीज हुआ है कि नहीं, लीज कितने साल का है, ये सारी ओरिजिनल टाइटल क्लियर होने के बाद में हम लोग आएंगे उस बिल्डिंग में, उस प्लॉट के ऊपर में रीडेवलपमेंट होने के बाद में हमें क्या मिल सकता है। रीडेवलपमेंट करने के बाद में हमें क्या मिल सकता है बोले तो हम अगर हमारा फ्लैट अगर आज हमारा फ्लैट अगर 400 फुट का है
तो हम कम से कम एक 25% से 35% तक हम एडिशनल उसके ऊपर एरिया एक्सपेक्ट करते हैं, हर आदमी एक्सपेक्ट करता है। आज अगर मैं 1 बेड में रहता हूँ तो डेफिनेटली मुझे अगर 2 BHK अगर मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड बी बेनिफिट, क्योंकि मेरा जब 30 साल पहले घर था तो एक फैमिली स्टार्ट होती, बच्चे छोटे होते, फैमिली के वहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते, तो कहीं ना कहीं हमारी रूम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमारी फैमिली एक्सपांड होती है। तो एक कम से कम 25-30 साल बोलो तो एक जनरेशन गैप हो गया, हम लोग एक 25 साल का 30 साल का एक जनरेशन गैप पकड़ते। तो 2 BHK अगर मैं डिजाइन करता तो वो बनाने के बाद में मुझे एडिशनल बेचना भी, क्योंकि ये सारी चीजों में मुझे मेरा घर अभी का प्रेजेंट घर 400 फुट का, उसके जगह अगर मैं 500, 550, 600 फुट का घर एक्सपेक्ट करता हूँ तो मेरे घर का कंस्ट्रक्शन प्लस सेल के एरिया का कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ करके इस सारे एरिया का पूरा जो खर्चा है इसकी रिकवरी मेरे सेल में जो मिलने वाले फ्लैट्स है उसमें से रिकवरी होना है। दिस इज कॉल्ड अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सो फिजिबिलिटी इसमें क्या, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अभी क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट होते वक्त आपने देखा होगा कि अभी बम्बई में हर साल कहीं ना कहीं हर चीज के वस्तु के दर बढ़ते हैं, तो हर दर बढ़ते बोला दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो एवरी ईयर अराउंड 7% का इन्फ्लेशन, हर चीजों में एक एवरेज इन्फ्लेशन आता है कि हर चीजों का एक एवरेज कॉस्ट, जैसे POL बोला तो पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, जो हमारे डायरेक्टली हमारे हर चीज जो बिकत आती है मार्केट में से आती है, उस हर चीज के ऊपर वो चीज जब लेवी होती है तो मार्केट की उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। सो POL की प्राइस अगर कहीं पे अगर बढ़ती है तो सब्सिक्वेंटली हमारी प्राइस तो अराउंड 7%। अगर एक प्रोजेक्ट करना है तो उसको 3 साल तक का ड्यूरेशन जा सकता है, तो 3 साल में 7% भी बोला तो एक 20 से 21% वहां पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग मेरे प्रोजेक्ट में मैं जब फिजिबिलिटी वर्कआउट करता हूँ तो मैं पीछे में लास्ट में 20% का क्वेश्चन रखता हूँ। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, कि मेरा प्रोजेक्ट कहीं पे भी जाके मुझे फेल नहीं होना है, मेरा प्रोजेक्ट कहीं पे भी जाके मुझे मेरा घर फ्री निकलना चाहिए, प्लस मेरा प्रोजेक्ट सेल करके उस प्रोजेक्ट में मुझे कुछ ना कुछ फंडिंग निकले, सो दैट आई कैन कीप दैट फंडिंग इन अ सिंकिंग फंड और इन अ डिपॉजिट फंड्स ऑफ माय सोसाइटी। सो उसके बावजूद आज का डेट का जो भी मार्केट रेट है, आज अगर बुलेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10,000 रुपए का रेट है या 15,000 रुपए का रेट है, पहले जब बिल्डर थे सेल के, इसमें उन्होंने बिल्डर लोगों ने सेलेबल एरिया पे फ्लैट बेचे कि एक कारपेट एरिया के ऊपर 50% से 65% तक लोडिंग करते थे। और अभी गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स दिया, आपको रजिस्ट्रेशन होते वक्त तो कारपेट के ऊपर ही होता था, अभी गवर्नमेंट ने और रेरा आ गया, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, उसने तो बोल दिया कि आपको कारपेट पे बेचना है। तो कारपेट का रेट समझो, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अगर 10,000 रुपए रेट है तो आज के रेट में मैं मेरा सेल का रेट उससे मैं 20% डिस्काउंट करके ही पकड़ता हूँ। मुझे 20% डिस्काउंट क्यों करना है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बुकिंग में भी फ्लैट बेचना है, मीनवाइल कंस्ट्रक्शन के वक्त फ्लैट बेचना है, कुछ फ्लैट मैंने सेल के इसमें बैठना है। तो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, दैट शुड बी व्हाटएवर द सेल प्राइस, आज की जो मार्केट की रेडी प्राइस जो फ्लैट जा रहा है उसके कम से कम मुझे 20% डिस्काउंट लेके पकड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, उसमें और एक चीज हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहला प्रोविजन टेनेंट्स को देते हैं कि जब हमारे यहाँ के टेनेंट्स हैं, हर एक आदमी यहाँ पर फ्लैट ले भी नहीं सकता या हर एक आदमी ये बोल भी नहीं सकता कि मैं फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नए इसमें फ्लैट लेना चाहेंगे, तो फ्लैट लिए हम पहले से उसमें बोल देते कि इसमें 15-20% तक उसको डिस्काउंट दिया है, सो माय मार्केटिंग कॉस्ट विल बी सेव्ड एंड आई विल बी गेटिंग अ रेडी कस्टमर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेनर। एक प्रोजेक्ट अगर करना है तो एक प्रोजेक्ट के बीच में अगर आप निकालोगे 100 रुपए में से 30 रुपया प्रीमियम का जाता है, 30 से 40 रुपया कंस्ट्रक्शन का जाता है, 20 रुपया आपका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जाता है, और एक 10 से 15% हम उसके ऊपर एक कुशन पकड़ते हैं कि जिसमें प्रोजेक्ट का बफरिंग होना चाहिए। प्रोजेक्ट एकदम हम कट टू कट जाके वर्क नहीं कर सकते। मैम प्लीज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्ट, वी बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वी विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। हम सोसाइटी के तरफ से काम करेंगे, सोसाइटी के बिहाफ पे काम करेंगे। अभी नाउअडेज प्रीवियसली द रीडेवलपमेंट हैज हैपेंड, उसमें जो बिल्डर लोगों की तरफ से हुआ, कई प्रोजेक्ट बंद हुए, क्या हुए, नाउ वी हैव कम अप विद द न्यू थॉट कि ये डेवलपमेंट होते वक्त जब एक डेवलपर आता था, डेवलपर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर डिजाइनर, लीगल एडवाइजर, मार्केटिंग, टेक्निकल सुपरविजन एंड एवरीथिंग, वो फाइनेंस और सारा कुछ अरेंज करके वो डेवलपमेंट कर सकते। क्यों ना ये चीज सोसाइटी खुद कर सकती है, सोसाइटी खुद का डेवलपमेंट खुद भी कर सकती है ना, बट उसको सोसाइटी में नॉट नेसेसरी कि सोसाइटी के अंदर में हर आदमी टेक्निकल हो या हर आदमी में नॉन टेक्निकल, इसमें वो हर आदमी आ गया है, हर आदमी अपना अपना बिजनेस और अपनी सर्विसेज और सारा संभाल के काम करना है। तो अगेन दैट पीएमसी कम्स फॉर हियर। पीएमसी का मतलब है कि हमारे वन विंडो में वी आर कीपिंग आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर डिजाइनर, लीगल एडवाइजर, मार्केटिंग, फाइनेंस कंसल्टेंट एंड दैट एवरीथिंग व्हाटएवर मिसलेनियस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और हम कैसे काम करेंगे, हम सोसाइटी का ये प्रोजेक्ट करते वक्त सोसाइटी से उस प्रोजेक्ट पे होने वाले एक्चुअल खर्चा, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के खर्चे के ऊपर में एक हमारा परसेंटेज फीस होता है। वी आर नॉट इन्वॉल्व इनटू एनी सिंगल परसेंटेज into the profit to be obtained
at the end of the entire redevelopment thing. Profit is totally with the society. We have come up with the new solution. This is what a self redevelopment is. अभी सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो एक अच्छा पीएमसी ढूंढना है. तो अच्छा पीएमसी का मतलब क्या है कि अच्छा पीएमसी है तो उसके बाद में मैन पावर कैसा है, वो मैन पावर ने किसने कहां पर काम किया है, किस प्रकार के प्रोजेक्ट किए हैं. अभी आप लोगों में से पूछेंगे कि बीइंग सेल्फ डेवलपमेंट आपने कितने प्रोजेक्ट किए. ये नया थॉट है. अभी तक मेरे पास में 4 से 5 मेरे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन अभी तक सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ऑन पेपर से प्लानिंग और सबमिशन और इसी स्टेज के ऊपर में है. मुंबई बैंक जैसा है, मुंबई बैंक ने इसके ऊपर अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मुंबई बैंक ने भी कुछ लोगों को फाइनेंस किया, पर वहां पे भी कुछ चीजों में उनका बहुत सी चीजों में क्राइटेरिया में बहुत से लोग उसमें फुलफिल नहीं बैठे. वी आर कमिंग अप नॉट ओनली विद द मुंबई बैंक, वी कैन अप्रोच टू एन नंबर ऑफ बैंक्स. ऑल द बैंक्स, बैंकों ने जैसे स्टेट बैंक है, ऑल नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, सारे ही बैंक उसमें फाइनेंस के लिए जा सकते हैं. अभी मैं नेक्स्ट आई एम कमिंग टू दैट कि वो थीम करते हैं तो हम कैसे कैसे उसमें इंट्रोड्यूस होंगे. What is PMC? I have already told you. PMC is a project management consultant working on behalf of societies. Please go. A consultant who work on redevelopment projects on behalf of the society. Next. Next. Why we are here? That also I have told you कि in between the society whatever the show has to be done means that redevelopment has to be done. For that everything right from technical, legal and financial, all that support will be given by a project management consultant. Next. Work. Okay, next. Our in-house team. We have architects, we have engineers, we have lawyers, we have chartered accountants for finance and these things. Mr. Divakar is our one of the partner. Mr. Mahesh Kopde, he looks after marketing and other area. Mr. Rohit Parmar, he is the architect. These people, we are in-house into our company. We take right from planning to everything into our company office only. We hire the specialist architect, like big architects are there, but they give the concept. But right from the planning and submission, उसमें आर्किटेक्ट के ऊपर हमको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. हम उसका कंसेप्ट लेके हमारे ऑफिस में सारा डिजाइनिंग और सारा सबमिशन बना के कॉर्पोरेशन के पास में या माड़ा के पास में जहाँ भी सबमिशन करना है करके हम उसका अप्रूवल्स लाते हैं. नेक्स्ट. I am being a technical head of that company and I look after everything right from feasibility report, right from submission, right from approvals taking, right from execution and everything. Next. Services provided by us: project management consultancy, redevelopment, self-development, architectural services, building audit, building repairs, conveyance and deemed conveyance. अभी आपके इसमें आपने देखा होगा कि इवन कन्वेंस के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं. कन्वेंस के बाद में हमारा रोल शुरू होता है, बट कन्वेंस में हेल्प का मतलब ये होता है कि कन्वेंस करते वक्त आपके नोड यूज सर्टिफिकेट्स है या नोड यूज करना है. लेकिन फॉर्चुनेटली आपके साथ में आपने बहुत अच्छा काम किया है. मैं तो उसके लिए इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा कि कन्वेंस नाम की चीज जो है, कन्वेंस का मतलब होता है कि लैंड जो है, लैंड की ओनरशिप होती है, लेकिन लैंड के ऊपर जो प्रॉपर्टी खड़ी है उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपके पास आना, दैट इज अ कन्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. आपका कन्वेंस है बोला तो आप यू आर द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. अभी इसके आगे हम जाते हैं सेल्फ डेवलपमेंट में जब जाएंगे. नेक्स्ट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में हम लोग क्या क्या करते हैं, ये मेरे प्रोफाइल में है, आप लोग शायद उसके बीच में जा सकते हैं. नेक्स्ट. ये भी स्कोप ऑफ वर्क में मैंने दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कार्पेट एरिया मेजरमेंट ऑफ ईच फ्लैट, प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेंडर प्रिपरेशन, हेल्पिंग सोसाइटी and its solicitor to prepare power of attorney, approval of plans prepared, verification, submission of layout, verifying submission building plan, verifying obtaining IOD, CC, everything. Right from the beginning एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके आपका प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट के अगर कल को अगर मैं आज के प्रेजेंटेशन किया था, कल को मुझे अगर सोसाइटी इस चीज का करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, so my first thing will be right from the beginning a planning, a plan. What sort of plan? Ma'am, please go to the next. I will show you just एक मैंने जस्ट मोगम फिजिबिलिटी बनाया, उसमें एक प्लान छोटा सा बनाया हुआ है. नेक्स्ट विल कम टू दैट प्लान. दीज आर सम ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स वेयर वी हैव डन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. इसमें अप्रूवल्स और इसके पहले से कई सालों से हम लोग पीएमसी का मतलब हम लोग अप्रूवल्स और इसके लिए लाइसेंसिंग का काम करते थे. नाउ द सेल्फ डेवलपमेंट हैज कम, दैट्स व्हाई वी हैव कम अप इन लाइट. और आज के डेट में आगे चल के हमारा स्कोप थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है. नेक्स्ट. This is the plan, means this is the plan. Now
एज फार एज योर प्रोजेक्ट इज कंसर्न, मैंने आपके प्रोजेक्ट में एक फिजिबिलिटी बनाया है। सो फिजिबिलिटी में क्या होता है कि आपका एक 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, उसमें करीब 96 टेनेंट्स है। 96 टेनेंट में अराउंड 370 का आपका प्रेजेंट एरिया है। तो 370 के एरिया के बाद में आप मैक्सिमम क्या जा सकते हैं? मैक्सिमम जाते वक्त आप तो अभी मैंने मेरे हिसाब से जो मेरा जजमेंट आया है, मेरा जजमेंट मैंने 530 स्क्वायर फीट का एक कारपेट एरिया, प्योरली कारपेट एरिया की वॉल्स नहीं, इसमें कारपेट एरिया कंसिडर किया कि उसमें मेरा फ्लैट का ऐसा रहेगा कि मेरा हॉल कम डाइनिंग किचन, 1 बेडरूम, 2nd बेडरूम, मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट। सो दिस इज अ टिपिकल लेआउट व्हाट आई हैव कंसीडर्ड राइट नाउ। 530 स्क्वायर फीट का एरिया पकड़ के आज के रेट में उसका फिजिबिलिटी पकड़ा है, आज का मार्केट का रेट पकड़ा है। कल को हो सकता है मार्केट का रेट अगर मार्केट पे अगर ज्यादा अच्छी तरह से अगर मार्केट का ये आए। सबसे पहली बात, एक प्रोजेक्ट करने के लिए क्या लगता है? प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लगता है, प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस लगता है और प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा एग्जीक्यूशन टीम लगता है। मैक्सिमम डेवलपर्स के प्रोजेक्ट कहां पर अटकते हैं कि उसमें उनको फाइनेंस चाहिए, उसमें उनको अप्रूवल चाहिए। अभी इस केस में अभी मैंने फिजिबिलिटी बनाने के बाद में फिजिबिलिटी में 530 का कारपेट एरिया, आपका एक एक्स अमाउंट कॉर्पस फंड और आपको एक मिलने वाला भाड़ा जैसे एक 25,000 रुपए का एक एवरेज पकड़ा हुआ है मे बी। अभी इसमें कैसा है कि मैं अगर ये मेरा बेसिक क्राइटेरिया मैंने डिसाइड किया हुआ है, बेसिक क्राइटेरिया के बाद में कल आप लोग आपके बीच में बैठ के आप एक उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि नहीं हमें 25,000 भाड़ा नहीं हो सकता है, हम 20 में भी जा सकते हैं, हम 30 में भी जा सकते हैं। कुछ लोग शायद उनके अगर फ्लैट होंगे तो वो बोलेंगे ठीक है वी विल नॉट टेक दैट इंटरेस्ट अमाउंट, बिकॉज यहाँ पर डेवलपर आप खुद हैं। सो यहाँ पर सारे राइट्स आपके पास में। आई एम बीइंग ए कंसल्टेंट, एवरी टाइम आई विल सजेस्ट यू कि दीज आर द प्लान्स, 1 ऑप्शन, 2nd ऑप्शन, 3rd ऑप्शन एंड 4th ऑप्शन। ये कुछ ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना आपका काम है। आप अगर किसी एक फलाने ऑप्शन को सिलेक्ट करते कि आज मैंने 530 किया, कुछ अगर आप ऑप्शन में जाते कि नहीं हमको 550 ही चाहिए या हमको 600 जाए, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। मैं उस चीज पे भी वर्क करूंगा, लेकिन उस चीज पे वर्क करते वक्त वो कितना वर्केबल है और वो वर्क करने के बाद में आखिरी में जाके मेरे सोसाइटी का, मेरे प्रोजेक्ट का बफर मुझे क्या निकलता है। वी हैव टू सी बोथ द थिंग्स। नाउ नोबडी, थर्ड पर्सन इज नॉट अ डेवलपर, नाउ हियर सोसाइटी इज अ डेवलपर। So we have to be little bit responsible while doing that expenditure or while expecting something. So इस चीज में ऐसा नहीं होता कि एक ये कंसल्टेंट है और इन्होंने इतना बोला, शायद हो सकता है मेरे बाद में और कोई कंसल्टेंट है वो बोला कि आपको 550 मिल सकता है, 600 मिल सकता है, बट यू शुड आस्क देयर कि ये 550 मिले, 600 मिले, उसके बाद में बाकी बचने वाले के बाद में मेरी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी या प्रोजेक्ट की वर्केबिलिटी किस हद तक जाके मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज you have to complete your project, you have to get into your own houses। आपके फ्लैट में आपको आपका खुद का घर, टेनेंट का खुद का घर अच्छी तरह से बन के आप घर के अंदर जाना चाहिए। उस घर के अंदर जाते वक्त आपके इसमें जो कॉर्पस अमाउंट जो मैंने फिक्स किया है कि एरिया, कॉर्पस फंड एंड द रेंटल अमाउंट, ये 3 चीजें हमने एक फिक्स पकड़ी हुई है। इसके बाद में जाके जो प्रोजेक्ट के आखिरी में जो 20% का जो मैंने बफर अमाउंट पकड़ा है, दैट विल कम एज ए सिंकिंग फंड और अदरवाइज ए डिपॉजिट फंड फॉर द सोसाइटी। एक नया आदमी, आप अगर नए घर में जाएंगे, नए फ्लैट में जाएंगे, तो डेफिनेटली नए घर में जाने के बाद में आपको उस घर में जाने के बाद कुछ चीजें तो नए एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे जेंट्स है तो जेंट्स से ज्यादा मैं तो बोलूंगा कि लेडीज लोग उनके घर के सही मालिक है, क्योंकि आपके 24 घंटे में से ज्यादा आवर्स तो वही घर पे रहते हैं। ज्यादा आवर्स तक उस घर का जो आनंद लेना है, घर का जो अवेलिंग करना है, वो ज्यादा यू आर अवेलिंग द मेजर फैसिलिटीज ऑफ दैट रूम। तो उसके अंदर जाके किसी ने अगर बोलना है कि मेरा मॉड्यूलर किचन करना है, किसी ने बोलना है मुझे इंटीरियर्स करना है, पर्दे करना है, मुझे सोफा लेना है, मुझे फ्रिज लेना है, मुझे डाइनिंग टेबल लेना है। पुराने घर में शायद 370 के इसमें कुछ चीजें ना हो, लेकिन हर एक आदमी के अपने सपने होते हैं ना, इसी जिंदगी में उस सपनों को पूरा करना है। तो उसके लिए एक ये कॉर्पस फंड में का कुछ अमाउंट है, उसमें का पार्ट ऑफ द अमाउंट यू कैन यूज इट एंड पार्ट ऑफ द अमाउंट कैन बी यूज फर्दर फॉर द मेंटेनेंस। आप नए घर में जाने का आज आपका मेंटेनेंस होगा शायद 200, 400, 500 या 1000 कुछ भी हो सकता है, बट नए घर में जब जाएंगे तो नए घर में डेफिनेटली आपका जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी टैक्स उस वक्त जब आप कंप्लीट करेंगे, उस वक्त जब आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आएगा, तब आपका उस वक्त का जो प्रॉपर्टी टैक्स का स्लैब रहेगा, उस प्रॉपर्टी टैक्स के स्लैब के हिसाब से डेफिनेटली उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा। अगर मेंटेनेंस बढ़ने के बाद कल को मेरे पास अगर कॉर्पस फंड आता है और मैंने अगर सोचना है कि मैंने 12 महीने की पहली कॉस्ट अगर सोसाइटी के पास डिपॉजिट कर देना 1 साल भरे के लिए, वो अगर आती है, समझो अगर मेरी 5 है, 5,000 रुपए अगर हम कॉस्ट पकड़ते हो, 12, 25, 60,000 रुपए तो इनिशियली हम देते हैं, तो 1 साल तक हम सुकून से उसमें रह सकते हैं, उस चीज का आनंद ले सकते हैं। दूसरी बात, नई बिल्डिंग बनने के बाद में नई बिल्डिंग का जो भी मेंटेनेंस होता है, नया बिल्डिंग है तो कम से कम मेरा आज तक का अनुभव है पिछले 32 साल में का कि नई बिल्डिंग कम से कम 5 साल तक तो भी आपको मिनिमम में एक्सपेक्ट करना। मैं जीरो मेंटेनेंस नहीं बोल रहा, लेकिन मिनिमम मेंटेनेंस कि कोई रिपेयर है, कोई पेंटिंग है, आज अगर अच्छा पेंट भी करते हैं तो फिर से अगर पेंट करने की चाहत भी हो तो मिनिमम तो 5 साल तो उसका पेंटिंग
मेरे ख्याल से खराब नहीं हो सकता है। बंबई की बारिश है, काफी जोरदार बरसती है, इस साल तो 30 से 40% सब बारिश ने भी, ऊपर वाले ने भी हमको बोनस दिया हुआ है मेरे ख्याल से। तो शायद बड़ी बारिश हो या कुछ भी हो, तो राइट फ्रॉम हमारा बिल्डिंग मटेरियल आज के रेट में हम लोग आरसीसी मटेरियल यूज करते हैं, मैक्सिमम आरसीसी में। हाई राइज टावर अगर जाते हैं तो बिल्डिंग में वॉल्स कम होती है, बिल्डिंग के प्लास्टर एरिया कम होते हैं, बिल्डिंग को बाहर से टेक्सचर पेंटिंग किया जाता है या सैंडपेस्ट प्लास्टरिंग किया जाता है, अच्छी तरह का क्वालिटी मटेरियल और अच्छी तरह का मटेरियल देने के बाद में एक हमारे स्ट्रक्चर को एक अच्छी तरह से बनाया जाता है कि ताकि कम से कम उसकी आने वाले अगले कम से कम 50 साल की लाइफ, 50 साल बोला तो एटलीस्ट आगे ना 1 जनरेशन। तो 50 साल में हम अगर 5 साल पकड़ते, 5 साल में अगर लाख रुपया या 50,000 रुपये पर मेंबर भी अगर देता है तो 50 लाख रुपए साल का, तो 5 साल में आप लोग कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए आपका बिल्डिंग का एक मेंटेनेंस फंड के नाम पे सोसाइटी के पास जमा हो सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ कि आपके सोसाइटी का मिलने वाला प्रॉफिट के अलावा जो हमने कॉर्पस फंड किया है, ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर फ्यूचर ऑल्सो। आगे चल के भी आपको नया काम तो बन गया, नया काम बनने के बाद में उसकी अगर मेंटेनेंस, उसकी पाइपलाइन और उसकी इसमें की रिपेयर्स जो मिनिमम है जब का तब अगर हो जाता है तो मुझे नहीं लगता, जैसे गाड़ी का मेंटेनेंस जब हम रखेंगे तो 8 या 10 साल भी गाड़ियों को कुछ होता नहीं, गाड़ी अच्छी चलती है। वैसे हमारा घर का मेंटेनेंस अगर हम लोग प्रॉपर रखेंगे तो घर का आगे का उसका लाइफ भी अच्छा रहेगा। और इस चीज में मैं तो बोलूंगा जेंट्स से ज्यादा लेडीज लोगों इसका कवर कर सकते हैं कि हमारा किचन है, तो किचन का वेस्टेज जाते हो कैसे करना है। किचन में आजकल आपने देखा होगा कि सारे सिंक सभी नए फॉरेन में होता है करके यहाँ पर भी लोगों ने लाया, सिंक फ्लोर में नहीं देते, वो वॉल पे देते। वॉल पे इसलिए देते कि वहां का वो जाने वाला वेस्टेज जो है उसका ओनली लिक्विड वेस्ट जाए, सॉलिड वेस्ट नहीं जाए। तो ये छोटी छोटी खबरदारी की बहुत, अगर सॉलिड वेस्ट आता है तो लाइन चौक होगी, लाइन चौक होगी, 1 लाइन चौक के बाद में 10 लाइन चौक होगी, प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें यानी कंट्रीब्यूशन तो आने का ही रहेगा, 100% आप सब मेंबर का रहेगा, तो अच्छा कुछ बने, अच्छा कुछ ये रहे। मैंने मेरे इसमें एक अगर ये प्लान बनाया हुआ 530 का इसमें का दिखाया हुआ है, दिस इज द मिनिमम, बट डोंट टेक इट ग्रांटेड ये 530 ही रहेगा। दिस कैन बी 550 ऑल्सो, दिस कैन बी 600 subject to condition that what we are getting at the end of the show. So there has to be something at the end of the show. End of the show में मुझे जो बफर है या मुझे जो 15-20% बफर, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये भी डिसीजन आपका है। I will suggest you, मेरा जब प्लानिंग से शुरू होगा तो हम लोग एक 30 दिन या 45 दिन उसमें प्लान बनाएंगे, एक प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा प्लान। We can give you 10 and n number of plans, but उसमें से हमारा बेनिफिट किसमें है, that we will have to take care। हमको उसमें समझना पड़ेगा कि हमारा बेनिफिट किस पे है। हम ज्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं करते हो, कम को अगर एक्सपेक्ट करते, कल को हमारा प्रॉफिट, आज हमने अगर 15-20% का प्रॉफिट पकड़ा, हो सकता है हमारी बिल्डिंग, हमारे पास में फाइनेंस है, हमारे पास में अप्रूवल्स है, हमारी बिल्डिंग अगर सही मायने में अगर कंप्लीट होती है तो सही मायने में कंप्लीट होने शायद लोग अगर कंटिन्यू काम चलता है, बिल्डर लोगों के काम कहीं ना कहीं फाइनेंस से रुक जाते हैं। हम लोग फाइनेंस क्या करने वाले, अभी आई एम कमिंग टू दैट फाइनेंस ऑल्सो, कि हमने एक प्रोजेक्ट करते हैं तो एक फाइनेंस को कैसे खड़ा करना है। मैम प्लीज थोड़ा सा, ये एक जस्ट मैंने एक टेंटेटिव बनाया है कि एक टेंटेटिव हमारे लोग करते हो कि 96 टेनेंट्स है, तो 96 टेनेंट पिछले आप कम से कम 40 सालों से रहते, तो आपकी एक में के साथ में कोई एक कनेक्शन है। दो यू आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बट स्टिल यू आर लिविंग हियर फ्रॉम सिंस लास्ट 25-30 ईयर, तो एक अंदर में एक अपने आप का कनेक्शन होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट, दिस इज माय थॉट, दिस इज नॉट अ डिजाइन, दिस इज जस्ट माय थॉट दैट वन विंग आई विल क्रिएट फॉर द टेनेंट्स। दिस वन विंग, this one portion will be for the tenants and another portion for the sale. Sale will be connected to you by virtue of these slabs. ये आपने अगर बीच में अगर स्लैब देखते हैं तो आपको पता है कि जब हम लोग हाई राइज में जाते हैं तो फायर एस्केप के लिए 8 माला 14 माला ऐसे उस पे रिफ्यूज एरिया दिया जाता है, और रिफ्यूज एरिया करके क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक फ्लोर का एक फ्लैट जाता है। इफ यू गो फॉर दिस ट्विन डिजाइन, तो हम लोग ट्विन डिजाइन में वहां का एक फ्लोर जो रिफ्यूज एरिया तो काम में आएगा ही, पर उसके साथ साथ हमारे कुछ छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे सोसाइटीज में किसी की छोटी छोटी एक गेट टुगेदर होती है, तो वो छोटी सी गेट टुगेदर भी हम वहां पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गेट टुगेदर के लिए, दैट इज फॉर रिफ्यूज एरिया एंड दैट इज फॉर फायर एस्केप। तो 8 माला 14 माला दिखते वक्त डिजाइन। नेक्स्ट, इसके अलावा हम अब ऐसे सेपरेट टावर्स में भी जा सकते हैं। दिस इज जस्ट माय थीम, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट द डिजाइन, वी कैन गो इन मच बेटर डिजाइन और लाइक देन दिस, बट एक मेरा थॉट है कि हम अगर जाते हैं तो 2 अगर सेपरेट टावर्स करते हैं तो एक में पूरा रिहैब का बिल्डिंग जिसमें हम 530 कारपेट के हमारे फ्लैट्स होते हैं, सेल के बीच में वी विल टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ दिस एरिया, ये एरिया में 530 चलता है, 600 चलता है।